Before I move on to the next guest, there was something that even when we visited Kumbh, we realized that this time the notion, the entire experience was entirely different. The police officers were not behaving in the way that we normally see. There was a lot of love for the devotees. There was a lot of help. Everyone was coming together, whether they were sanitation workers or everyone. There was this feeling of seva, duty everywhere, which is very different from what we normally see. I would like to call upon on stage Shri Amrit Abhijat ji and would really like to know what exact instructions were given and what challenges do you faced while, coming this, while making this whole Mahakumbh together. I think your question largely relates to the role of leadership, because right from the word go, when the Honorable Chief Minister took his first meeting in November 2022, he made it very clear that it is really important that there should be a behavioral change. There should be a proper mandate for the police and for all the personnel, not only police, to come up to the expectations of people and to behave in a manner in which they feel very welcomed, in which they are assisted properly. To that extent, we did have many training programs, and in fact, best institutes from the country were called upon to address the issue of behavior, whether it was with regard to leaving a packet behind, whether it was with regard to getting in a panic, whether some law and order problem arose. The police was absolutely adept. And I would also thank the role of the cyber security and cameras that were installed, that it also helped us in securing some good behavior from the people as well. So thanks to the people also. But I think that the role of training and proper briefing by senior officials, by the leadership in no uncertain terms, have played a very important role in how people really felt. And I've had personal experiences when I have also interacted with the lay tourists who come from rural areas, from anywhere in the country. Their experience with regard to the behavior of the people of administration and also the people of Prayag per se has been anything but marvelous. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call you up on the stage. You have a presentation for us. I'll try to be as brief as possible. Thoda specific hai, but it may probably help people understand कि beyond the realism and dream things we talk about, there should be something that we know in concrete terms. So as I told earlier, we were expecting around 40 to 45 crore people to begin with for the Mahakumbh. And accordingly, the Mela Adhikari, Shri Vijay Kiran Anand, did a series of meetings with the people, the concerned departments. And we decided on a strategy that this time around we will probably be needing about 25% more area, 25%, 30% more deployment, rise in the budget and all that. So men, material and budgetary provisions were made to that extent. So you can see this graph actually shows it has 13 items here. But the most important one is that the area was increased by almost double. From 3,200 to 4,000 square feet, and the sectors rose from 20 to 25, and the length of the ghats were also increased. The parking areas were increased. I'll just limit it to this place. The total number of toilets that we got made, I'll be coming to the specifics later. But there was a very clear-cut strategy that from 20 to 25 crore people which had visited in the Mahakumbh of Kumbh of 2019, this would greatly have to be enhanced. To that extent, we started emphasizing on the urban structure likely. Next. This is just a few snapshots. I'm sure it's trading all over in the Instagram and other platforms, but these are real site images. Next. These are the outcomes that we have. The total number of the funds that has gone into getting this Mahakumbh done is 15,000 crores. इसमें लगभग 7,000 करोड़ भारत सरकार का है, लगभग 7,000 के लगभग उत्तर प्रदेश सरकार का है. ये आवंटित धनराशि है. इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बचत होगी. इसमें 566 schemes were passed,
21 departments participated in a very synchronous manner and 66 crore 36 lakhs is the overall संख्या. इसको हमने 65 पे किया है. 183 देश से लोग आए और 25,000 लोग, इससे भी ज्यादा लोग लगाए गए थे. These are the broad statistics of what we've done. आपको धीरे धीरे हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, फिर ये भी बता देंगे कि प्लास्टिक्स कितना था, फूल माला कितना था, कितनी संख्या में ये हुआ. नेक्स्ट, ये जो ओवरऑल लेआउट है इस कुंभ में, एक बहुत अजीब सी गरीब बात ये रही चंपत राय जी से मैं बताना चाहूंगा सर कि लगभग 75% जो धनराशि स्पेंड हुई है, ये क्रिटिसिज्म रहा है. मैं वहां पे जिलाधिकारी रहा 2006-07 में, जब अर्थ कुंभ वहां कराने का मौका मिला तो हमेशा लोग कहते थे साहब ये तो आता है गंगा के साथ बह जाते हैं, सरकारी मामला है, ये है वो. तो वी वेर वेरी कंसिस्टेंट कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, इसको हम सिर्फ इसलिए यूज नहीं करेंगे कि एक बड़ा मेला कराना है, परंतु अनवरत ये मेला यहाँ चलता रहे. हमारी कोशिश है पर्यटन के माध्यम से कि इसको एक एनुअल एक फीचर दिया जाए जिसमें कि 5-6 महीने, बिकॉज जिस प्रकार तरीके से टेंट सिटीज हमारे पॉपुलर हुए उसमें ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही अलग सा माहौल बन सकता है. और चूंकि अब केवीटी एंड अयोध्या जी का और वहाँ पे हनुमान जी का भी विकास हो गया है, सब कुछ है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं ताकि प्रयाग को वो स्थान मिल सके पर्यटन में जो इसके लिए वो हकदार है. लगभग सर 75% धनराशि जो खर्च हुई, इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने खर्च किया पीडब्ल्यूडी के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के लिए, नेशनल हाईवे के रोड्स के लिए, ब्रिजेस और रोड डेवलपमेंट के लिए. इलेक्ट्रिकल वर्क्स में सिर्फ बिजली के तार नहीं बल्कि बिजली के सबस्टेशंस लगाए गए, पानी के लिए एसटीपीज लगाए गए हैं, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए लगाया गया. आप देख रहे हैं मेला वर्क्स में 5% में ही जो सिमट जा रहा है, जिसको लोग कहते हैं बहुत ये हुआ. सर हम लोग ऑडिट पैरास की तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि अब वो आएंगे धीरे धीरे. तो नेशनल हाईवे ने बहुत बड़ा काम किया सर, लखनऊ से जो यात्रा है वो बहुत सुगम हो गई है. तो एक ब्रॉड बेसिस ये कि 566 प्रोजेक्ट्स, कुछ इसमें से अभी भी कार्य चल रहे हैं सर क्योंकि रेलवे सिविल एविएशन के कार्य थोड़े लंबित से रहते हैं, बड़ी योजनाएं होती हैं उनकी. नेक्स्ट, ये सर स्वच्छता का जो कार्य हुआ, बुनियादी ढांचे का विकास, उसका एक प्रतिबिंब है. नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने ध्यान दिया है सर कनेक्टिविटी को, 14 पुलों का निर्माण किया गया हमेशा के लिए, जिसमें 160 सड़कों का चौड़ीकरण किया गया प्रयाग क्षेत्र में. नए टर्मिनल का विकास किया गया सर, रेलवे अवसंरचना का उन्नयन क्योंकि वहां प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकताएं थी, उनको बढ़ाना था. सड़कों में सुधार किया गया सर, चाहे वो पीडीए के क्षेत्र का हो चाहे नगर निगम के क्षेत्र का हो, और 100 से ज्यादा पार्किंग स्थलों का निर्माण जो कि आगे भी काम आएंगे. नेक्स्ट, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सर. ये राष्ट्रीय राजमार्ग का ये दृश्य है सर, ये आपका एयरपोर्ट का है, ये सारे रोड्स जो बनाए गए हैं, ये तो कागजों पे नहीं सर, वास्तव में लोगों ने इसको देखा है और इसको बनाया है. नेक्स्ट सर, ये एक नया सर्किट जो बन के आ रहा है, इसमें चित्रकूट रह गया सर. ये एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल हमारे लिए सर्किट है जिसको कि महाकुंभ के वजह से सर इसको हम लोग पूरी तरह से फलीभूत कर पाए. और जैसा आपने सर अयोध्या में जी में देखा, मिर्जापुर में उतनी भीड़ आई और बनारस में तो सर बहुत ज्यादा ही भीड़ रही, और मैं समझता हूँ ये एक एनुअल फीचर के रूप में इसका विकास किया जाना चाहिए. नेक्स्ट सर, ये घाटों का जीर्णोद्धार है, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, नागवासुकी का हो. 8 घाट सर हम लोगों ने परमानेंट बनवाए, सालों से हम लोग की तमन्ना थी. कुछ जो घाट रह गए हैं, हमारी कोशिश के अगले अर्ध कुंभ से बहुत पहले उसका निर्माण करा के उसको पूरा करा लिया जाएगा सर. ये माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे सर हमारी निर्देश मिले हैं तो उसको कराना है. नेक्स्ट सर, ये पानी का जो एटीएम वगैरह तो लगाया था, जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी से कराया था, परंतु इसमें मूल बात जो मैंने कहा कि एसटीपी का अरेंजमेंट ऐसा है सर कि अगले 2 साल में जो भी ड्रेन्स वहां पे अब जा रहे हैं वो बिल्कुल जाने बंद हो जाएंगे. नमामि गंगे उस पर वर्क कर रहा है शहरी विकास के साथ, तो मैं समझता हूं कि अविरल निर्मल धारा जो है वो पूरी तरह से फलीभूत होगा. नेक्स्ट सर, ये 25,000 सफाई कर्मी लगे, 1.5 लाख टॉयलेट्स का निर्माण किया गया. सर इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि एक एंगल अलग है सर. 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया तो बिहेवियरल चेंज की बात आई कि लोग टॉयलेट्स यूज करें, और यहाँ पे सर 10 साल में ये हालात हो गए कि लोग टॉयलेट यूज करते ही नहीं है, बल्कि नाराज भी होते हैं, डिमांड करते हैं, फोन करते हैं, और टॉयलेट तब तक यूज नहीं करते जब तक वो साफ ना हो जाए. तो ये सबसे बड़ी जीत जो स्वच्छ भारत अभियान की, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी संकल्प की है सर, कि आज जो एक आदत बदलने की बात 10 साल पहले हो रही थी वो इस प्रकार से शुमार हो चुकी है कि सर लोग टॉयलेट की डिमांड करते हैं. मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान के लिए सर बिहेवियरल चेंज के बारे में, कि
हम लोग सर शिकायत ही एड्रेस करते जा रहे थे, क्योंकि क्यूआर कोड बेस्ड था तो तुरंत हम तक शिकायत पहुंच जाते थे कि लोग अब उसको इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं कि किसी और विकल्प की तलाश उनको है नहीं। और मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी जीत है सर। और महाकुंभ के माध्यम से इस बात को जो एड्रेस किया जा रहा है, तो इट इज नॉट अ लोकल फिनोमेना बट अ कंट्री वाइड फिनोमेना वेयर वी हैव सक्सीडेड। नेक्स्ट, ये स्वच्छता का कार्य मैंने बताया सर। मैकेनाइज रोप स्वीपिंग का सर हम लोगों ने मेन मटेरियल मशीन तीनों ही चीज को यूज किया। मेन के बारे में बताया सर, करीब 25,000 लोग थे जो हम लोगों ने मशीन्स यूज की सर। इसका बहुत ही उपयोग आया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज को हाईलाइट कर रहा है कुंभ के पूरे इसमें सर, कि ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी को मर्ज करके सर हार्वर्ड इस पे स्टडी कर रही है कि किस प्रकार से एक ऐसी आस्था जो कि हजारों साल पुरानी हो, परंतु मैनेजमेंट जो उसका हो रहा है सर वो पूरे डिजिटली हो रहा है। कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे ट्रेन्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, कैसे जो एंटी सोशल लोग हैं उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, कैसे एक एक पॉलिथीन का पैकेट जो है सर वो हमारे कैमरा स्क्रीन पे दिखता था, जिसको उठाया जाता था, रह भले ही जाता हो, परंतु चाहे वो एआई का जो नगर निगम ने यूज किया उस पर मैं अभी आऊंगा, तो अभी बताता हूं सर्वे और आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट था सर ये प्रतिष्ठित स्थल का जो विकास किया गया है सर, आपने देखा कि पूरे सिटी को पेंट किया गया है। सरस्वती कूप का निर्माण, भारद्वाज पार्क का निर्माण, श्रृंगेरपुर का, अक्षय वट का, तमाम ये कार्य सर पर्यटन विभाग के द्वारा कराए गए। नेक्स्ट सर ये द्वार इत्यादि बनाए गए। शिवालय पार्क जो है सर ये सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का है और इसमें 10 से 15,000 लोग प्रतिदिन जा रहे हैं। और जो नगर निगम ने धनराशि लगाई सर उसका 1/4 तो कुंभ में हम लोग निकाल लिया। एक साल में सर जो पीपीपी में चुकी ये योजना है, और इसको सर हम अयोध्या जी में लेके आ रहे हैं सर। लव कुश जी का वहां पे निर्माण हुआ। इसी प्रकार का वेस्ट टू वंडर, एक एक सामान जो है सर इसमें ये सारा वेस्ट का है। और अलौकिक चीजें देखने के लिए सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल वहां से दूत भेजे, जिन्होंने इस स्टडी को ले जाके फिर वहां पे अन्य प्रदेशों में भी करने की बात आ रही है सर। ये सर जमुना द्वार है सर। इस ऐसे 4 द्वार हमने अलग से बनवाए हैं, जो कि प्रयाग में एंट्री के समय में बहुत ही सुगम रूप से बहुत बढ़िया दिखता है, एक वेलकमिंग द्वार की तरह। ये सांची स्तूप की बिल्डिंग है सर। नेक्स्ट सर ये 84 खंबा है, आस्था का स्तंभ। इसको सर हम लोगों ने हिंदू रीति के हिसाब से, जैसे हर स्तंभ जो है 1 लाख योनियों में हम लोग के बर्थ को सिग्निफाई करता है। और ये प्रयाग रेलवे एयरपोर्ट पे ही है स्थित। और चाहे वो आप मोक्ष के लिए जा रहे हो या मोक्ष से पाके बाहर निकल रहे हो सर, इससे आप रूबरू होंगे। और इसको सर हम लोग अन्य स्थानों पर भी ले जा रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम ब्यूटिफिकेशन इस तरीके के है सर कि टेम्पररी नेचर के नहीं है सर वो, और आगे निकल के आएंगे। नेक्स्ट ये सर डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर वहां पे बनाया गया था। इसको भी हम लोग परमानेंट रूप दे रहे हैं मेला क्षेत्र में ही, ताकि हमेशा के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने। और इसको सर बहुत ज्यादा विजिटेड रहा, माननीय प्रधानमंत्री लोगों ने सबको इसको सराहा है सर। और ऐसा कई हम लोग पर्यटक स्थलों पे लेके आएंगे, जिसमें डिजिटली भी आज की जनरेशन को बेहतर समझ आने के लिए AR VR रियलिटी पे ये बेस्ड होगा सर। नेक्स्ट सर ये ICCC का मैनेजमेंट में एक सर बहुत बड़ी टूल है। 2019 में हम लोगों ने इसको कोशिश किया था। इसको आगे बढ़ाते हुए सर नगर निगम ने इसको कोशिश करके AI बेस्ड किया है, जिसमें कि कूड़ा, जानवर, पेपर, पॉटहोल्स सबको हम लोग AI से डिटरमिन करते थे। बड़ा छोटी सी चीज है सर, कि जैसे अगर वोल्टेज डिम हो रहा है तो उसको AI से हम लोग पता लगा लेते कि कहाँ पे वोल्टेज डिप कर गया। वहां पे एक इवेंट क्रिएट होता है, वहां के जेई को मैसेज जाता है मोबाइल से, और जेई उसको 1 दिन 2 दिन जब भी उसको ठीक कराता है तो इवेंट क्लोज होता है। इस प्रकार के हजारों इवेंट रोड्स क्रिएट हो रहे थे, चाहे वो कूड़ा लेके हो। मेला क्षेत्र में सर एक एक इंच पे चप्पे चप्पे पे नजर थी, तभी ये इतना अच्छा हो सका। 2700 कैमरास मेला के क्षेत्र में थे सर, और लगभग 5000 पूरे शहर में। तो टेक्नोलॉजी एंड सर्वेलांस एंड टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन में कैसे मिला के कर रहे हैं सर। और इसमें खोया पाया हो सर, चाहे कोई किसी कुत्ते को खोजना हो सर जो भटक गया हो, या किसी को काट रहा हो, या कोई लड़की सर परेशान हो, एक भी इंसिडेंट सर किसी महिला से किसी छेड़खानी का, या किसी व्यक्ति ने किसी से बदतमीजी की हो, या कोई अपराध हो गया हो, मोबाइल चोरी होना सर कहीं ना कहीं लापरवाही की श्रेणी में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि सर उसके लिए नहीं, क्योंकि वो भी ट्रेन होके आते हैं, परंतु लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सर देयर वाज एब्सोल्युटली इंसिडेंट फ्री। और मैं समझता हूँ सर यूपी पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ये सबसे बड़ा जो चैप्टर है कि सिक्योर, सेफ एंड क्लीन को हम लोग दे पाए सर। तो इसमें सर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। और नेक्स्ट सर ये AI मॉनिटरिंग के जो हमारे टूल्स हैं, किस प्रकार से टॉयलेट्स की सफाई सर, जिस तरह से देखें सर ये
रोज रिपोर्ट बैक होता था, फोटो लेके वो सेंट्रल पूल पे भेजेगा कि ये टॉयलेट इतने बजे साफ हुआ है, और उसको फिर सुपरवाइजर चेक करता था कि एक्चुअली है कि नहीं। नेक्स्ट, ये सर परियोजनाओं की जानकारी जो थर्ड पार्टी के असेसमेंट के बगैर हम लोगों ने इसको किसी को अप्रूव नहीं किया सर, तो इस तरह से 900 करोड़ की इन्वेंट्री की निगरानी सर, ये परस्पर जो है लोग जाते हैं, उसको काम को देखते हैं, वेरीफाई होता है, फोटोग्राफ लगता है, उसके बाद ही होता है। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर, आपको पता होगा कि सबको भोजन जो है सबको फ्री मिला है वहां पे, और इसको भी बहुत सराहा गया है। डिजिटल कुंभ की यात्रा में सर इस प्रकार से हम लोग रोड की ट्रैकिंग कर रहे थे, और ड्रोन को बहुत तरीके से यूज किया गया था कि किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, सफाई हुई है नहीं, उसको भी ड्रोन के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा था। नेक्स्ट, ये सर सतत विकास जो जिस प्रकार से सारी कुछ चीज को किया गया सर, बताते हैं कि कंठी मालाओं का सेल सर लगभग 300 करोड़ का हुआ है, और 800 करोड़ का सर माला बिका है। अब ये तमाम लोग स्टडी कर रहे हैं सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आएंगे सर। एक दातुन बेचने वाले की बात आई कि उसने कुछ दिनों में 40,000 कमाया, अब लोग कह रहे हैं वो गाड़ी वाड़ी खरीद लिया है सर। तो इस प्रकार की बात आती है कि इतने का सेल हुआ, और कई लोग घूमने आए सर और चाय की टपोरी लगा के सर लखपति बन के वापस गए। तो इस प्रकार का सर इकोनॉमिक आउटकम्स जो है इसके बहुत ही मजेदार है सर, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ इसमें अचीव किया सर लाइफ में। नेक्स्ट सर, ये अडेप्टिव रीयूज के लिए मतलब किस प्रकार से हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं सर, इसमें तमाम चीजें ऐसी होंगी सर जो कि अन्य जनपदों में चला जाएगा कुंभ के बाद सर, चाहे वो चेकर प्लेट हो, लाइट्स का अरेंजमेंट हो, इस प्रकार से पॉन्टून ब्रिजेस का इस्तेमाल होने के लिए आगे चला जाएगा। नेक्स्ट सर, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की बात मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट, ये तमाम चीजें थी, बस मैं अब 2-3 चीजों में खत्म करूंगा सर। इससे हम लोग को टेक अवेज क्या है, बिकॉज अब हम अगले कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं सर कि लीडरशिप का रोल सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्ड करती है। मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों ने गिनती रखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार प्रयागराज आए मेले के पहले और मेले के दौरान, परंतु इतना जरूर पता है कि ऐसा कोई चप्पा नहीं होगा सर जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने कदमों से चल के ना गए हों, चाहे वो किसी का अखाड़ा हो, या टॉयलेट का अरेंजमेंट हो, या किसी व्यवस्था को देखना हो, या किसी अधिकारी की मीटिंग हो, या किसी पुलिस के स्टैंड पोस्ट हो। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में सर एक बहुत बड़ी बात होती है सर, और हम लोग प्रेरणा ही ले सकते हैं सर, क्योंकि उनके रफ्तार को तो मैच करना मुश्किल है, बट प्रेरित होकर ये कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो है सर, जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा, कि एलिमेंट ऑफ फेथ, ये इतनी बड़ी चीज है सर कि अगर हम लोग ये सब ना भी दें तो हिंदुस्तान की सर जो एक हमारी विरासत है, जो संस्कार संस्कृति है। मैं सर बहुत लोगों से पर्सनली मिला सर, और ये तक पूछा कि कैसे आए कैसे जाओगे, बोले सर 3 दिन के लिए आए हैं, कहीं भी सो लेंगे, खाने की कोई कमी नहीं है, मैं तो डुबकी लेने आया हूं। तो सर न जात का, न प्रांत का, न ऊंच का, न नीच का, न कुछ, सर वो अपने डिप के लिए आ रहा है, और ऐसी भावना से अभिभूत हो रहा है जो कि सबको एक कड़ी में जोड़ रही है सर। इसका कोई सानी नहीं है कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब वो देखने का हम लोगों को सर मौका मिला सर, ये बहुत बड़ी जीत पूरे हमारे संस्कृति के लिए है, भारतवर्ष के लिए है। तीसरी जीत जो मैंने पहले बताया कि स्वच्छ भारत अभियान का एक डिमांड के रूप में सबको जनरेट कर पाना, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी जीत है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार से मेला कराया जाता है सर, मुझे बताया गया महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव गोपनीय रूप से हमारे यहाँ आके एक एक व्यवस्था को देख के गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतनी पहले की तैयारी उनको जानकारी हो सर। आशीष हैड कम फ्रॉम महाराष्ट्र। यस सर, हाँ, ही वुड हैव शेयर्ड दैट। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए अच्छी बात है कि हम लोग हमेशा से इंदौर जाते रहे वहाँ की सफाई को देखने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, नासिक इत्यादि जाते रहते हैं, अब वो यहाँ आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, और हम लोग निश्चित रूप से शेयर करना चाहेंगे। मैनेजमेंट के रूप में 75,000 पुलिस, करीब 1.5 लाख लोग की ड्यूटी, सबका सतत तरीके से हो सके, सबका व्यवहार सही हो, जो मैडम ने हमसे क्वेश्चन पूछा, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसको स्टडी करना। और सर ने 22 कहा, मैं सर को थोड़ा सा बड़ा बता दूं सर, 26 संस्थाएं, और लास्ट टाइम 2 किए थे, इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि थोड़ा इसको स्प्रेड करो, टॉपिक्स में स्प्रेड करो। 26 संस्थाएं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, क्योटो यूनिवर्सिटी, और रफली ऑल द IIMs, all the IITs, NIUA, Delhi University, all of them have lined up. They stayed there through the visit, and they are busy preparing the reports now. I hope that by the end of this month sometime it will be released, and we will get to know what they've seen. But from what I get, that they are thoroughly impressed with the sanitation and the security elements prominently.
कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। 21 विभाग के साथ इतनी योजनाओं को कर पाना, हर विभाग को सही समय पे डिलीवर करना, मैं समझता हूँ एक स्टडी का एक बहुत बड़ी है और पॉसिबिलिटी इसकी बहुत बड़ी जीत है सर कि द इम्पॉसिबल कैन बी अचीव्ड। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज है और लोगों की सबसे बड़ी जीत है सर, क्योंकि मुझे बताया गया कि छोटे छोटे घरों के कमरों में सर 20-20, 30-30 लोग तैयार होके रात में रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया कि एक शनिवार को 1.5 लाख गाड़ी बाहर की थी और सारे रास्ते में सर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। 40,000 गाड़ी करीब प्रयाग जनपद की अपनी है सर, परंतु वहां के लोग जो है अपने घरों में लोगों को छज्जों पे कमरों में बैठाया, सुलाया, खिलाया। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है प्रयाग के लोगों के लिए सर। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जीत वो है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक अपटर्न में मैं कहूंगा कि 2 लाख 3 लाख करोड़ का फिगर टर्न हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मोटरसाइकिल के स्टूडेंट्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया किसी कॉन्फ्रेंस में, 500, 1000, 2000 में, मतलब वो अपने टाइम में, और गाड़ी वालों ने, नाविकों ने, हर व्यक्ति ने वहां पे कमाया है। तो एक इवेंट जो कि एक धार्मिक रूप का एक इवेंट है, वो एक इतना बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनेगा कि इकोनॉमी को ही टर्न करने की हैसियत रखता हो। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जीत ये है कि हमारे इवेंट्स को महज एक रिलीजियस इवेंट के रूप में ना देखा जाए, बट दे ऑल्सो टर्न अराउंड द इकोनॉमी, क्योंकि माला किसी न किसी किसान के खेत में हुआ है, किसी न किसी किसान ने कोई खाना बना के वो आपको भेजा है। तो ये एक ओवरऑल ग्रोथ को पिक्चर देता है और महाकुंभ की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जीत ये है। और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मैं इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।